Good morning students. Today we are continuing our chapter 5, that is basic geometrical ideas. Students, today we will learn about very important topic, that is circle. You all are familiar with this name circle. Let us see what is circle and what are the various parts of the circle. Circle. We see at various places the shape of a circle in our daily life. Clocks are good examples of circle. A 1 rupee coin, wheel and tires are some examples of circles. Take a bangle and place it on a sheet of paper and starting from a point, move the pencil along its curved edge. We get a closed curve and this closed round curve is called the circle. Take a thread and place it along the edge of the circle, starting at a point and ending at the same point. Now, measure the length of this thread. This length is called the circumference of the circle. Take a compass with a pencil slid on it. Draw a circle with the length between the sharp point of the compass and the pencil as 5 cm. We get a perfect circle as shown on the screen. So, we can say that circle is a closed path which is always at a fixed distance from a fixed point. The fixed point O is called the center. The fixed distance is called the radius of the circle. Let us now understand the various terms related to circle. This is a circle with center O. Consider a point P on the circle. Join O and P. The line segment OP is called the radius of the circle. We can draw countless number of radii on a circle. Take one more point R on the circle. Draw a line segment PR passing through O. This line segment is called the diameter of the circle. We can draw countless number of diameters on a circle. Consider a point Q on the circle. Draw a line segment PQ. This line segment is called the chord of the circle. A line segment joining any 2 points on the circle is called the chord of a circle. These are all chords of this circle. We can draw countless number of diameters on a circle. And we see that the diameter of a circle is also a chord of the circle. The diameter is the longest chord of the circle. Remember these important points. Diameter of a circle is also a chord of the circle. The diameter is the longest chord of the circle. We can draw countless number of radii, diameter and chords in a circle. Look at this circle. We can see that AB is a chord. AB divides the circle into 2 parts. Each part is called the arc of the circle. An arc is the portion of the boundary of the circle. This is the minor arc and this is the major arc. Symbolically, we represent the arc AB like this. When we draw the longest chord on this circle, we see that it divides the circle in 2 equal parts. Each part is called a semicircle. We see that the line cuts the circle in 2 points. So, this line is called as a second to the circle. The line L is cutting the circle in A and B. A second is a line that intersects the circle in 2 points. Yes students, today what you have learnt about the circle. देखिए what is circle? It is a simple closed curve. It is a simple closed curve, all the points of which are at the same distance from a fixed point. देखिए क्या कहता है कि एक ऐसा सिंपल क्लोज्ड कर्व होता है, all the points of which जिसके सभी पॉइंट्स आर एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, किसी फिक्स पॉइंट से सेम दूरी पे होते हैं, जिसके सभी पॉइंट्स किसी भी फिक्स पॉइंट से सेम दूरी पे होते हैं, सेम डिस्टेंस पे होते हैं, ऐसे कर्व को हम सर्कल बोलते हैं। और बच्चे वो फिक्स पॉइंट कौन सा होता है? वो होता है सेंटर। तो सेंटर से आप सर्कल के किसी भी पॉइंट को मिलाएंगे तो वो डिस्टेंस सभी के सेम आएंगे, बराबर दूरी आएगी।
ओके। फॉर एग्जाम्पल द सन, द मून, तो कैसी शेप होती है सन की? सर्कल। मून की कैसी होती है? सर्कल। ओके। यस, द पार्ट्स ऑफ अ सर्कल। अब हम एक एक करके सर्कल के पार्ट्स के बारे में जानेंगे। ओके। यस, फर्स्ट सेंटर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ सर्कल, द सेंटर। सेंटर आपको पता है क्या होता है? द फिक्स पॉइंट। ये एक ऐसा फिक्स पॉइंट होता है प्लेन में, किसी भी प्लेन में एक ऐसा फिक्स पॉइंट होता है विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम एवरी पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ सर्कल। सर्कल की बाउंड्री पे हर पॉइंट की दूरी इस फिक्स पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट होती है। इक्वी डिस्टेंट मतलब स्टूडेंट, इक्वी मतलब इक्वल, डिस्टेंट मतलब डिस्टेंस, तो बराबर दूरी होती है किससे? इस फिक्स पॉइंट की सर्कल की बाउंड्री पे बने सारे पॉइंट से इस फिक्स पॉइंट की इक्वल दूरी होती है, उसी को सेंटर कहते हैं। इस फिगर में देखिए, इन फिगर O इज द सेंटर। तो बच्चे देखिए सर्कल की बाउंड्री है, सर्कल पे जितने भी पॉइंट्स है बाउंड्री पे, इन सब की सेंटर से जो है इक्वल डिस्टेंस होगा। किसी भी पॉइंट को ले लीजिए। सो फिक्स पॉइंट इज ऑलवेज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम एवरी पॉइंट ऑन द बाउंड्री, पर होना बच्चे बाउंड्री पे ही चाहिए। ओके। तो O इज द सेंटर। नाउ रेडियस, व्हाट इज द रेडियस? द फिक्स डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल। सर्कल के किसी भी पॉइंट का सेंटर से जो डिस्टेंस है उसी को रेडियस बोलते हैं। ओके स्टूडेंट, ये देखिए सर्कल का एक पॉइंट B है और ये सेंटर है, तो और B के डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? रेडियस। अब आप कहेंगे मैम P भी तो सर्कल पे है, तो यस, OP इज ऑल्सो अ रेडियस, OA इज ऑल्सो अ रेडियस। तो बच्चे किसी भी पॉइंट को ले लीजिए सर्कल के, अगर उसको सेंटर से मिला देंगे तो इस डिस्टेंस को रेडियस बोलेंगे। एंड देयर आर इनफाइनाइट रेडियस, काउंटलेस रेडियस आप बना सकते हैं। थर्ड वन इज कोड। अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन अ सर्कल इज कॉल्ड कोड। बच्चे किसी भी लाइन सेगमेंट को, सर्कल के दो पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट को क्या बोलते हैं? कोड। ओके, द लाइन सेगमेंट, एक ऐसी लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू पॉइंट्स ऑफ द सर्कल, सर्कल के दो पॉइंट्स को अगर मिला दिया जाए तो उस लाइन सेगमेंट को क्या बोलेंगे? कोड। तो यहाँ क्या लिखा है इन फिगर? AR इज अ कोड। तो देखिए AR ये लाइन सेगमेंट है, इसको मिलाने पे ये क्या बन गई? कोड। इन दोनों को पॉइंट को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? कोड। सर्कल के टू पॉइंट्स को मिलाते ही कोड बन जाएगी। तो कोड भी काउंटलेस होती हैं, कितनी भी बना सकते हैं। डायामीटर, अ कोड दैट पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक है, देखिए डायामीटर भी एक ऐसी कोड होती है जो कहाँ से निकलती है? सेंटर में से पास होके जाती है। वैसे तो आपको भी पता है कोड का मतलब क्या था? टू पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन। ओके, फिर आप कहेंगे डायामीटर कैसे कोड हो गया? तो देखिए बच्चे डायामीटर भी तो कोड ही है। पहले देखिए टू पॉइंट्स मिल रहे हैं A और B, इन दो पॉइंट्स को मिला दो सर्कल के, कोड बन गई। पर ये एक ऐसी स्पेशल कोड है जो सेंटर से निकल रही है। किससे निकलती है? सेंटर से। और ऐसी कोड जो सेंटर से निकल जाए वो क्या बन जाती है? डायामीटर। ये भी एक डायामीटर है, ये भी एक डायामीटर है। ओके स्टूडेंट, देखिए सेंटर से निकलने वाली सभी कोड्स को डायामीटर बोलते हैं। आफ्टर बच्चे डायामीटर की एक इम्पॉर्टेंट बात हम ये कह सकते हैं, इट इज़ द लार्जेस्ट कोड। ठीक है, तो सबसे लंबी कोड ही डायामीटर होती है। आफ्टर दैट सरकमफ्रेंस, व्हाट इज सरकमफ्रेंस? बच्चे सिंपल सी बात है, द बाउंड्री ऑफ अ सर्कल, मतलब द डिस्टेंस अराउंड द सर्कल, द डिस्टेंस अराउंड द सर्कल, सर्कल के चारों ओर जो डिस्टेंस है इज कॉल्ड सरकमफ्रेंस, या पेरीमीटर भी इसको कहा जा सकता है। तो देखिए इस बाउंड्री को, जो डिस्टेंस है ना सर्कल के चारों ओर, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड सरकमफ्रेंस। ओके, आर्क, व्हाट इज आर्क? अ पार्ट ऑफ सरकमफ्रेंस इज कॉल्ड आर्क ऑफ द सर्कल। देखिए ये सरकमफ्रेंस है, पूरा घेरा ये सरकमफ्रेंस है। अगर मैं इसका कोई छोटा सा पार्ट ले लूँ लाइक दिस, इतना इतना या इतना इतना या कितना सा भी छोटा सा आप पार्ट ले लो, तो दैट इज कॉल्ड आर्क ऑफ अ सर्कल। यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्ट ले लो, कोई ना कोई हिस्सा होना चाहिए सरकमफ्रेंस का, दैट इज कॉल्ड आर्क ऑफ अ सर्कल। ओके, फॉर एग्जाम्पल देखिए AR, ये जो A से लेके R तक का पार्ट है ये क्या हो गया?
आर्क। बच्चे देखिए ए से आर अगर आप इस लाइन सेगमेंट को बताते हैं तो दिस इज कोड, पर अगर आप इस आर्क की बात करते हैं तो दिस इज आर्क। ये कर्व जो है ना कर्व, दिस इज आर्क, और जो ये लाइन सेगमेंट है दिस इज कोड। तो जब आप कोड बताना चाहेंगे तो ए आर के ऊपर ऐसे लाइन लगा देना, लाइन सेगमेंट, और जब आप आर्क बताना चाहेंगे तो बच्चे ए आर के ऊपर एक आर्क का ऐसे साइन बना देना। देखिए जैसे मैंने बनाया है इन फिगर, ए आर इज आर्क, ए आर पे ऐसे लगा दिया कर्व, ओके। और जब कोड थी तो ए आर पे ऐसे लाइन सेगमेंट बना दी थी। यस, सेकेंड, अ लाइन पासिंग थ्रू अ सर्कल, एक लाइन जो सर्कल में से पास होके जाती है एंड इंटरसेक्ट द सर्कल, और सर्कल को काटती है 2 पॉइंट्स पे। कितने पॉइंट्स पे? 2 पॉइंट्स पे। इज कॉल्ड सीकेंट ऑफ सर्कल, ओके। देखिए बच्चे इस फिगर में देखिए, दिस इज सीकेंट, एक ऐसी लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट्स पे काटती हुई जा रही है, पास होती हुई जा रही है, दैट इज कॉल्ड सीकेंट। फिर आप कहेंगे मैम 2 पॉइंट्स पे तो कोड भी कट करती थी, बट देखिए कोड जो होती है वो लाइन सेगमेंट होती है, इसकी एक लेंथ होती है, बट सीकेंट में लाइन सेगमेंट नहीं होती, लाइन होती है जिसकी कोई लेंथ नहीं होती। यहाँ से ही बढ़ा सकते हो, यहाँ से ही बढ़ा सकते हो। 2 पॉइंट्स यहाँ होते हैं, 2 पॉइंट्स यहाँ होते हैं, बट यहाँ लाइन सेगमेंट है, यहाँ लाइन है, ओके। और हमने एग्जाम्पल दिया है TL इज सीकेंट, TL इज सीकेंट, यहाँ लाइन है ये। सेमी सर्कल, सेमी सर्कल मतलब आधा सर्कल। द एंड पॉइंट्स ऑफ अ डायामीटर, डायामीटर का जो एंड पॉइंट्स होते हैं सर्कल के, डिवाइड्स द सर्कल इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, और हर पार्ट को क्या बोला जाता है? सेमी सर्कल। तो देखिए बच्चे ये डायामीटर है, ये ऊपर वाला जो है ये क्या बन गया? डायामीटर सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो आर्क है ये भी सेमी सर्कल है, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो आर्क है ये भी सेमी सर्कल है। बच्चे डायामीटर क्या करता है? ये सेंटर है अगर, तो सर्कल का जो ऊपर का ये वाला सर्कल है ये भी सेमी सर्कल बन जाता है, ये भी सेमी सर्कल, मतलब आधे सर्कल, ओके, हाफ सर्कल्स। बेसिकली व्हाट इज सर्कल? इट इज जस्ट अ बाउंड्री। बच्चे ये बाउंड्री एक सर्कल है, ना कि अंदर, ये इंटीरियर है सर्कल का, ये आउट एक्सटीरियर है, बट दिस इज सर्कल, दिस बाउंड्री, ओके। तो हमने एग्जाम्पल दिया APB, देखिए APB, दिस इज सेमी सर्कल, एंड ARB, ARB, ठीक है। 3 पॉइंट्स लेने पड़ेंगे, अगर आप AB बोल देंगे तो ये डायामीटर माना जाएगा। सेमी सर्कल बताना है तो 3 पॉइंट, ARB इज अ सेमी सर्कल। यस स्टूडेंट, नाउ स्टार्टिंग अवर एक्सरसाइज 5.6। देखिए स्टूडेंट, सर्कल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक और रह गए हैं, वी विल डिस्कस दैम टुमारो, ओके। नाउ उन्हीं टॉपिक्स के बिहाफ पे ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसको हम कल कंटिन्यू करेंगे। हम अभी सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। यस, व्हाट इज सेकंड क्वेश्चन? फ्रॉम द एडजॉइनिंग फिगर, जो आपको साथ में ये फिगर दे रखी है, नेम द फॉलोइंग, आप नेम लिखिए। तो देखिए बच्चे, दिस इज अ फिगर, इस फिगर को देखते हुए आपको नेम लिखना है। फर्स्ट रेडियाई, देखिए सिंगल अगर रेडियस हो तो उसको रेडियस बोलेंगे, बट कई सारे अगर रेडियस हो तो रेडियाई बोलते हैं। प्लूरल फॉर्म जो होती है रेडियस की वो रेडियाई होती है, ओके। तो आपको नेम लिखने को कहा है रेडियाई के। तो देखिए रेडियस क्या थी? सेंटर से सर्कल के किसी भी पॉइंट को मिला दो, दैट इज रेडियस। तो मैं आपको एक रेडियस बताती हूँ, OA मैंने बताई, OA इज द रेडियस, ओके। बाकी रेडियस आप खुद ढूंढेंगे जो सेंटर से सर्कल की बाउंड्री तक मिला हुआ है, ऐसी लाइन, बाकी आप खुद लिखेंगे। सेकंड, कोड्स, कोड्स कौन कौन सी हैं? या स्टूडेंट देखिए, फर्स्ट पार्ट में रेडियाई मैंने आपको बताया, एक रेडियस मैंने बताई है, बाकी आप खुद लिखिए। रेडियस होता है सेंटर से बाउंड्री तक करे, तो OA मैंने आपको बताई है, OA रेडियस हो गई, बाकी आप खुद लिखेंगे, ओके। आप इस पे ऐसे भी लगा सकते हैं, ओके। कोड पूछा है सेकंड पार्ट में, कोड कौन कौन सी होती है? सर्कल के 2 पॉइंट्स को मिलाना होता है कोड में। कोड क्या होती है? द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स ऑफ द सर्कल। तो ये कोड मैंने आपको बताई AC, बाकी आप खुद देखेंगे, ओके। यस, थर्ड, डायामीटर, नेम द डायामीटर। डायामीटर होता है एक ऐसी लाइन सेगमेंट जो सेंटर से निकलती है, और देखिए
दिस इज अ कोड और सेंटर से निकल रही है, तो ये DC इज द डायामीटर। तो थर्ड में DC इज द डायामीटर। ओके, क्या और कोई ऐसी लाइन दिख रही है, कोड दिख रही है जो सेंटर से निकल रही हो? तो नो बच्चे, दिस इज द ओनली लाइन। तो इसमें डायामीटर सिर्फ क्या है? DC। वैसे हो इनफाइनाइट सकते हैं, ऐसे देखिए, ऐसे बना सकते हैं, ऐसे सेंटर से निकलना चाहिए, ऐसे बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं, इनफाइनाइट है, बट हमने यहाँ पे फिगर में एक ही दे रखी है तो DC लिख दिया। यस, फोर्थ पॉइंट, द ट्राइंगल हुज वर्टेक्स इज द सेंटर ऑफ सर्कल। एक ऐसे ट्राइंगल्स के नेम मांग रहे हैं जिसका एक वर्टेक्स सेंटर है, जिसका एक वर्टेक्स क्या है? सेंटर। तो देखिए, O इज द सेंटर। अब एक ऐसी ट्राइंगल बताइए जिसका वर्टेक्स है O। तो देखिए, मुझे तो साफ दिख रहा है, ट्राइंगल COB। ओके, मैंने तो अपना बता दिया, ट्राइंगल COB। अब कोई और ट्राइंगल आपको दिख रही है जिसका वर्टेक्स O हो? तो देखिए, ये वाली है, बाकी आप खुद ढूंढेंगे। ओके, और नेम लिखेंगे। यस, थर्ड क्वेश्चन बच्चे, आपको फिगर दे रखी है, इस क्वेश्चन को आप बुक में ही फिल करेंगे। ओके, दिस इज द फिगर हेयर। फर्स्ट पार्ट, IM इज द डैश ऑफ द सर्कल। देखिए फिगर में IM सर्कल का क्या है? देखिए इस फिगर में IM। ओके, वेयर इज IM? सेंटर इज I और ये M। तो IM सर्कल का क्या है? रेडियस है, सेंटर है, कोड है। तो आप खुद फिल करेंगे, यहाँ पे मैं नहीं बताऊंगी। HQ इज द डैश ऑफ सर्कल। सेकेंड, HQ देख रहे हैं आप, HQ क्या है सर्कल का? ये भी आप खुद लिखेंगे। देखिए, जो मैंने आपको डेफिनेशन आज लिखवाई है उनको अच्छे से लर्न करके फिर इस क्वेश्चन को ट्राई करना। थर्ड, PQ इज द डैश ऑफ द सर्कल। अब देखिए PQ का है, PQ, और ये I सेंटर है, PQ, ये क्या है? ये भी आप खुद फिल करेंगे। फोर्थ पार्ट, PM इज डैश ऑफ द सर्कल। देखिए PM, ओके, ये P से M, ये क्या है सर्कल की? ओके, ये आप खुद लिखेंगे, हम पढ़ चुके हैं इनके बारे में। यस, फिफ्थ पार्ट, द नेम ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। व्हाट इज सर्कमफ्रेंस? कंप्लीट बाउंड्री को, सर्कल की कंप्लीट बाउंड्री को क्या बोलते हैं? सर्कमफ्रेंस। तो स्टूडेंट, सर्कमफ्रेंस का नेम आप कैसे देंगे? देखिए, बाउंड्री पे जितने भी पॉइंट है ना, उन सबको कलेक्टिवली आप बोलेंगे, पर खत्म वहीं करना है जहां से स्टार्ट किया था। ओके, जैसे मान लीजिए आप H से करते हैं तो HQMPH, या फिर P से करते हैं तो PHQMP। तो बाउंड्री पे जितने पॉइंट्स है सारे बोलते हुए चलते हैं, लास्ट खत्म वही करते हैं जहां से स्टार्टिंग की। तो नेम ऑफ द सर्कमफ्रेंस क्या हो गया? PHQMP। ओके, कैसे लिखेंगे इसको फिफ्थ पार्ट में? जैसे PHQMP। ओके, दिस इज द नेम ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। यस स्टूडेंट, व्हाट इज योर होमवर्क? होमवर्क इज दैट, सबसे पहले तो जो आज आपको डेफिनेशंस लिखवाई है एक पेज पे आपको सुंदर सुंदर उसको लिखना है। आफ्टर दैट आपको एक्सरसाइज 5.6 स्टार्ट करनी है, और इसका कौन सा करना है? डू क्वेश्चन नंबर सेकंड एंड थर्ड। थर्ड आपको बुक में ही करना है, सेकंड आपको फेयर नोटबुक में करना है। ओके, और फर्स्ट MCQ और बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन हम कल कंटिन्यू करेंगे कुछ टॉपिक समझने के बाद।